Yo, what's up, everyone? This is Nikhil, your DLR mentor at Bullseye. So, let's start with the fourth set of our 50 days 50 DLR sets. I hope लास्ट के 3 वीडियोस में तुमको समझा होगा कि कैसे सेट सॉल्व करने हैं, कैसे टेबल्स बनाने हैं. So, we'll start with the fourth set today. Now, as you can see, this is a caselet based set. Caselet मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ में information is given with respect to any variables and you have to plot a table or you can say तुम clues wise कुछ उसको properly segregate करना है and you have to solve the questions. ठीक है? Now, looking at this set, क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? So they are saying कि there are two students, Chirayu and Tanmay, और वो two students are attending 3 different coaching classes. Now the coaching classes are Apex, Bullseye and Computer Expert. Basically you can say ABC. ABC करके classes है. Now if you see that each student pays monthly fee to the each coaching classes and the monthly fee that each student pays to any coaching class is a positive integral multiple of 1000. So this is an important clue because we know कि हर एक फीस जो है वो एक तो 1000 रहेगा 2000 रहेगा 1000 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है. ठीक है. Now coming back to the clues, they are saying that the total fee that Chirayu pays to these 3 coaching is 30,000. So I can directly plot Chirayu is paying a total fee of 30,000. Now what they are saying next, for each coaching, the fee that it receives from one of the two students is quadruple of the other. मतलब अगर if I say that Chirayu pays 1000, then Tanmay has to pay 4000. अगर तन्मय पे कर रहा है 20,000, so there is a two possibilities that either चिरायु has to pay 80,000 इसका 4 times या फिर 20,000 is 4 times of what 5,000, so he has to pay either 5,000 or either 80,000. so from this I can deduce that जो फीस रहेगा चिरायु और तन्मय का that will be always in the ratio of 1:4. now is an important thing because आगे जो क्लूज दिए हुए हैं, क्या क्लू है नेक्स्ट, total fees from Bullseye, total fee that Bullseye receives from two of the students is 50% of the fees that Apex Learning receives from Tanmay. So Tanmay से जो फी मिल रहा है उसका 50% यहाँ पे है. इसका रिवर्स क्या होगा कि Bullseye को जो फीस मिल रहा है उसका डबल तन्मय के पास, तन्मय ने Apex को पे किया है. So I can say this I can say this can be an x and this can be a 2x. ठीक है. Now what is the last clue saying? That the fee that computer expert receives from Tanmay is not greater than 30,000. Now computer expert मतलब C हो गया, तन्मय is not greater than 3,000 मतलब it can be 1,000, it can be 2,000 or it can be 3,000. Now we know कि जो भी फीस रहेगी वो 1:4 के रेशियो में रहेंगे and we want a multiple of 1000 in this. So अगर thousands के मल्टीपल्स में चाहिए तो इसका अपन डिवाइड बाय 4 कर ही नहीं सकते क्योंकि इसको डिवाइड बाय 4 किया तो ये 250 आएगा, इसको डिवाइड बाय 4 किया तो ये 500 आएगा. सो ऑब्वियस है दैट तन्मय का 4 टाइम्स चिरायु पे करने वाला है. तो अगर तन्मय ने 1K पे किया है, चिरायु विल पे 4K. अगर तन्मय ने 2K पे किया है, चिरायु विल पे 8K. और अगर तन्मय ने 3K पे किया है तो चिरायु विल पे 12K. सो एवरी फीस दैट तन्मय पेज उसका 4 टाइम्स चिरायु पे करने वाला है. नाउ एज वी नो क्या दिया हुआ यहाँ पे, सी 1:4 तो दिया है हर एक फीस का, तो आई कैन से कि यहाँ पे 1:4 ऐसे हो सकता है और एल्स इट कैन बी लाइक दिस. सो इवेंचुअली ये जो फीस रहेगा टोटल फीस फॉर बुल साइड विल बी 5x. तो अगर ये 5x है तो ऑब्वियसली ये 2x नहीं रहेगा, दिस विल बी अ 10x. ये क्लियर टू एवरीवन कि ये 1:4 में रहेगा तो ऑब्वियसली ये 5x हो गया और इसका डबल तन्मय पे कर रहा है एपेक्स को. सो फ्रॉम दिस अभी इतने ही 4 ही क्लूज है अपने पास. तो यहाँ पे थोड़ा अजम्पशंस के साथ मैं चल लेता हूँ. सो अगर 5x है तो व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर दैट वी कैन गेट ओवर इट इज 5000 इफ x इज इक्वल टू 1. दूसरा पॉसिबल नंबर क्या, इट कैन बी अ 10,000 और इट कैन बी अ 15,000 और इट कैन बी अ 20,000. सो ये 4 पे पहले अजम्पशंस पे आगे बढ़ते हैं कि लीस्ट पॉसिबल नंबर्स अपन निकाल लिए जब x1 है, x2 है, x3 एंड x4 है. नाउ इफ यू सी यहाँ पे 30K कंप्लीट करना है. ओके सो सी फर्स्ट तो अपन ये निकाल लेते हैं कि 5,000 यहाँ पे है तो इसका डबल यहाँ पे क्या रहेगा 10K. अगर 10,000 यहाँ पे तो इसका डबल यहाँ पे आ गया 20K.
अगर 15,000 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 30K। अगर 20,000 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 40K। नाउ व्हेन वी हैव टू स्प्लिट 5,000 इन द रेशियो ऑफ 1:4, तो ये रेशियो क्या रेशियो में स्प्लिट होगा? 4,000 एंड 1,000। ठीक है, 10,000 रहेगा तब क्या स्प्लिट होगा? इट विल बी व्हाट, दिस इज फॉर 5K। नेक्स्ट रहेगा 10,000 लिया तो इट विल बी ऑब्वियसली डबल, डबल मतलब हो गया ये 8,000 एंड 2,000। नेक्स्ट जब 15,000 रहेगा तो इसका ट्रिपल होगा, सो इट विल बी अ 12,000 एंड अ 3,000 when 15K is over here, when 10K is over here। और जब 20,000 रहेगा तो इट विल बी व्हाट, इसका 4 टाइम्स मतलब 16,000 एंड 4,000 इज फॉर 20K। ये assumptions मैंने निकाल लिए राइट नाउ। ना व्हाट आर दे सेइंग, क्या कर सकते हैं? अभी यहाँ पे थोड़ा assumption लगाते हैं। अगर ये क्योंकि हर एक इसको फीस कैसे आने वाली है 1:4, सो एपेक्स के लिए जो फीस है वो 1:4 के रेशियो में रहेगी। सो इफ आई से कि 10K है, 10K को अगर 10K किसी का 4 टाइम्स है तो वो 4 टाइम्स इसका रहेगा 2.5 का, बट 2.5 इज नॉट पॉसिबल राइट। सो मतलब एक तो यहाँ पे 10K है तो यहाँ पे 40K लेना पड़ेगा, बट अगर मैंने यहाँ पे 40K ले लिया टोटल फीस तो चिरायु 30,000 ही पे कर रहा है राइट। सो यहाँ पे 40K पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे 10K भी पॉसिबल नहीं है। सो इफ आई से 20K है तो 20K के लिए यहाँ पे मैं इसका 4 टाइम्स तो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इसका 4 टाइम्स ले लिया तो इट विल बी 80,000 एंड चिरायु इज पेइंग अ टोटल ऑफ 30,000, तो यहाँ पे 80,000 पॉसिबल नहीं है। सो आई कैन डिवाइड बाय 4, तो आई कैन गेट यहाँ पे 5K पॉसिबल है। ठीक है, सो व्हेन 20,000 इज देयर आई कैन टेक चिरायु में 5K। ठीक है, 30,000 किसी 30,000 को 4 से डिवाइड में कर ही नहीं सकता क्योंकि 30 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, बट आई कैन से 30 का इंटू 4 किया तो 1,20,000 आ जाएगा, बट दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो 30,000 भी चला गया। सो लास्ट पॉसिबल है कि 40K है, 40 इंटू 4 1,60,000 यहाँ पे पॉसिबल नहीं क्योंकि टोटल फीस इज 30K, तो ऑब्वियसली अगर 40,000 है तो यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 10,000 और यहाँ पे 5,000। So there are two possible cases कि इधर चिरायु is paying 5,000 और चिरायु is paying 10,000। ठीक है, now on this case I can say जब चिरायु 5,000 पे करेगा, अब सी टोटल 30K है अपने पास। ठीक है, अगर 30K में से अपन ये 4, 8 या फिर 12 निकाल दिए तो वी आर गेटिंग व्हाट, 26K पे करने चाहिए। इफ नॉट 26, 8K है तो 22 पे करेगा ये दो में, या फिर 12K है तो चिरायु विल पे 18K टू A and B। सो आई कैन सी कि ये इवन नंबर्स है 26, 22 एंड 18। दीज 3 नंबर्स आर इवन नंबर, मुझे मतलब यहाँ का दो नंबर्स का एडिशन इवन चाहिए। तो अगर 5,000 है तो यहाँ पे मुझे अगर इवन एडिशन चाहिए तो 5,000 के आगे आई नीड एन ऑड नंबर। ठीक है, मतलब ऑड चाहिए यहाँ पे, एक तो 1,000, 3,000 ऐसा कोई चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल ऑड नंबर्स डू वी हैव ओवर हियर। सो 1,000 अगर मैंने लिया, ठीक है, 1,000, 5,000 सम्स अप टू 6,000। अगर यहाँ पे 6,000 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एलबीडी 24,000। सो 24,000 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे लेट अस 1,000 है ही नहीं, मतलब 5K वाला पार्ट आएगा ही नहीं। 5K एंड 2K पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर इवन नंबर लिया तो एडिशन ऑड नंबर ही आएगा, बट वी वांट एडिशन एज एन इवन नंबर। नेक्स्ट, अगर मैंने 5,000 को क्लब किया 3,000 के साथ तो आई विल बी गेटिंग 8,000 एडिंग अप A एंड B, मुझे 8,000 मिलेगा। बट 8,000 लिया तो आई नीड 22,000 ओवर हियर, तब जाके 30,000 बनेगा। बट C में आई नो 4K, 8K एंड 12K है, सो आई डोंट हैव 22,000 ओवर हियर। सो ऑब्वियसली आई कैनॉट क्लब 5 विथ 3, और नीचे 4 है तो ऑब्वियसली 4 प्लस 5 इज 9, ऑड हो गया एडिशन। वी वांट इवन एडिशंस ऑफ दिस। ठीक है, सो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस आई कैन डिड्यूस कि यहाँ पे 5,000 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 10,000 में भी पॉसिबल है। तो 10,000 अगर है तो यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 40,000, तो यहाँ पे 40,000 है मतलब तुम्हारा यहाँ पे रहेगा 20,000, मतलब ये 5,000, 15,000 सब निकल गए। सो आई एम समिंग अप टू 20,000, 40 एंड 10,000। लेट्स सी, अभी 10,000 अगर यहाँ पे है, 40, 10, 10 अगर 20,000 है मतलब 20,000 का स्प्लिट करना पड़ेगा इन व्हाट, 1:4। सो 20,000 को 1:4 में स्प्लिट किया तो अपने पास आ रहा है 16 एंड 4। सो 16, इफ आई से आई विल गिव 16 ओवर हियर, अगर मैंने यहाँ पे 16 डाल दिया तो
16 plus 10,000 is nothing but 26,000. So 26,000 4,000 पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 4,000 डाल दिया तो 10 प्लस 4 6, 10 प्लस 4 इज 14, 14 प्लस मुझे करना पड़ेगा और 16,000 यहाँ पे, बट यहाँ पे 16,000 का ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि चिरायु तन्मय इज पेइंग सी को नॉट मोर देन 3, मतलब 3 तक ही है। तो यहाँ पे अगर मेरा 16 आएगा ही तो ऑब्वियसली आई कैन से कि यहाँ पे अगर 10,000 है तो मुझे यहाँ पे 16,000 ही लेना पड़ेगा। सो अगर 16,000 यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4,000 एंड दैट्स हाउ माय टेबल इज सॉल्व। तो यहाँ पे 4 है, 4 के यहाँ पे 10 के 16 के 4 के 40 के 4,000, और यहाँ पे अगर 4 के है तो यहाँ पे 1 के होगा, ये दो नंबर्स नहीं होंगे। सो आई एम समिंग डाउन टू 10 40 16 4 4 1 और इसका टोटल आ गया 45K। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये सेट सॉल्व कैसे हुआ है? ठीक है, सिंपल सेट था ये, थोड़ा रेशियो के साथ खेलना पड़ेगा। केसलेट्स में तुमको टेबल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम तुम्हारे इक्वेशंस या वेरिएबल्स कैसे प्लॉट करे हो एंड कीप मिनिमम वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पे x, यहाँ पे 2x लेके यहाँ पे मुझे y 4y 1y भी ले सकता था, बट आई डिसाइडेड टू गो विथ ओनली वन वेरिएबल दैट वाज x instead of going for an x and y. So let's move on to the questions. Now the questions are saying what is the total monthly fee that Tanmay paid to these 3 coaching classes altogether? Obviously it was 45,000. Next, for how many of the 3 coaching receives a higher amount fee from Tanmay as compared to Chirayu? तो चिरायु से अगर कंपेयर किया तो तन्मय कहाँ का ज्यादा भर रहा है? तन्मय इज पेइंग ए को ज्यादा, तन्मय इज पेइंग बी को कम, तन्मय इज पेइंग सी को कम, मतलब ओनली वन इंस्टीट्यूट तन्मय इज पेइंग मोर देन चिरायु। व्हाट इज द मंथली फी दैट बुलसाई रिसीव्स फ्रॉम चिरायु? सो बुलसाई चिरायु कितना पे कर रहा है? 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मंथली फी? बुलसाई का तो हो गया। That's it guys. So this was the 4th set of DILR of our 50 DILR set का series. So stay tuned for the next session. I hope ये तो videos तुमको help करे with respect to your preparation. So every day 9 o'clock you will be getting a video of this series. So stay tuned for the tomorrow's video exactly at 9 p.m. Thank you for watching this video. Do like and subscribe the channel. Peace out.